Hello student, hello guys. Good morning, Jai Hind. We can discuss the video lecture in the chemical kinetic. हमने केमिकल काइनेटिक की डिफरेंट टॉपिक्स में डिस्कशन किया था. फर्स्ट, रेट ऑफ द रिएक्शंस, टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंटेंसियस रेट ऑफ रिएक्शंस, देन फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग on rate of reaction. Then discuss the order of reaction and molecularity. It is next part. Rate integration equation for order of reaction. जिसमें टर्म्स होती pseudo order reaction. Pseudo order reaction. Pseudo reaction means the chemicals reaction have a different value of order of reaction and molecularity. It's known as pseudo order reaction. Order of reaction and molecularity have a different value. So these chemical reactions are known as pseudo order reaction. तो pseudo order reaction means क्या होता है कि order of reaction और molecularity दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है, तब उसको हम pseudo order reaction कहते हैं. नेक्स्ट होता है pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction. Pseudo first order reaction means the chemical reaction have a first order of reaction and molecularity 2 and 3. कि chemical reaction की order of reaction 1 होती है, first होती है, और molecularity 2 और 3 होती है. As example, H2 plus Cl2 in presence of sunlight to H2. According to rate law, K 0, Cl2 0. The order is 0 and molecularity is 2. The decomposition of ammonia at platinum surface 3s2. Rate is equal to K 0. Pseudo order reaction means क्या होता है? The chemical reactions have different value of order of reactions and molecularity. It's known as pseudo order reaction. As example, these are pseudo order reaction. And next example, pseudo first order reaction. The chemical reaction have a first order reaction and molecularity 2 and 3. यदि reaction chemical reaction की order of reaction 1 है, first है, molecularity 2 और 3 होती है, that is known as pseudo first order reaction. As example, hydrolysis of ester and sucrose. Hydrolysis of ester and sucrose. Ester CH3, H2, acetic acid plus ethanol. तो अकॉर्डिंग टू रेट लो के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करेंगे. तो वाटर डज नॉट चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन. वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती. द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ओनली चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर. इस प्रकार के रिएक्शंस में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो उसमें कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता. रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. इसमें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वेलोसिटी वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है. केवल किस पर डिपेंड करता है रेट वेलोसिटी? द कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर पर. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मींस फर्स्ट हो गया, मोलिकुलरिटी 2 हो गई, 1 और 2. नेक्स्ट सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज प्लस H2O, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो अकॉर्डिंग टू रेट लो K C12 H22 O11. यहां पर भी वाटर की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती. तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? ओनली फॉर रिएक्टेंट. रिएक्टेंट मींस एस्टर concentration, sucrose concentration. These known as are order of reaction first, molecularity 2.
these known as are pseudo order reaction. Pseudo first order reaction, pseudo order reaction. So pseudo order reaction means that chemical reaction have a different value of order of reaction and molecularity. This is known as pseudo order reaction. Pseudo first order reaction means the chemical reaction have a first order reaction and molecularity 2 and 3. यदि किसी केमिकल रिएक्शन की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती है, मोलिकुलरिटी 2 और 3 होती है, तब सूडो फास्ट ऑर्डर होती है. और यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोलिकुलरिटी दोनों डिफरेंट है तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है. अब नेक्स्ट फेज में रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन. रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन. रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन मीन्स हम डिफरेंट derivative of the rate integration equation for the different order of reaction. In this chapter, we can discuss the rate integration equation only for zero and fast order. But the rate integration equation derivative for the zero order, fast order, second order and third order. In this chapter, in chemical kinetic, we can derivate the rate integration equation for a different order reactions. Different order reaction. In this chapter, we can discuss the only for zero order and fast order rate integration equation. In this process, the different order of reactions rate integration equation for zero, fast, second and third order reaction. We'll discuss the zero order reaction. Zero order integration equation. Zero order means reactant converted into product. Then initial constant, time is 0 second. Initial concentration of reactant. Initial concentration of reactant R naught mole per liter at T second is R mole per liter. According to rate law or according to law of mass action, then rate integration equations del R upon del T proportional to 0 power of the concentration of reactant. 0 power of the concentration of reactant minus del R upon del T is equal to K R naught. So R naught is equal to 1 minus del R upon del T upon K. It is differentiate rate equation. डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन. इसको डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन कह सकते हैं. इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल आर अपॉन माइनस डेल टी और इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करने पर डेल आर डेल टी ये होता है. तो R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. तो T इज इक्वल टू 0 है, 0 सेकेंड है, तो R इज इक्वल टू R नोट ये होगा. इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं. R नोट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी. सी इज इक्वल टू R नोट. सी क्या है पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट. इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं माइनस के टी R नोट. R naught minus R. तो K is equal to A. It is rate integration equation for zero order. Next, suppose initial concentration R naught is equal to A and R is equal to A minus X is equal to X. यदि इनिशियल कंसंट्रेशन आर नोट बराबर ए मानते हैं, ए मोल पर लीटर, और ई माइनस एक्स आर जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की उसको एक्स मानते हैं, तो क्या होगा के इज इक्वल टू ए अपॉन ए माइनस एक्स ये होता है. तो ए माइनस एक्स क्या हो गया ए माइनस ए एक्स ये होता है अपॉन टी. इससे रिप्रेजेंट करते हैं.
ये इसका फर्स्ट मेथड था। रेट इंटीग्रेशन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए हम फर्स्ट इंटीग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अब इसमें सेकंड आता है। सेकंड प्रोसेस क्या होगा इसमें, कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो A is equal to प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन A मोल पर लीटर एट T सेकेंड X मोल पर लीटर। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, X मोल पर। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, डेल X अपॉन डेल T प्रोपोर्शनल टू X की पावर 0। तो डेल X अपॉन डेल T की X की पावर 0, डेल X अपॉन डेल T डेल T A की पावर 0। ये तो की आ गया। तब हम डेल एक्स इज इक्वल टू के डेल टी, ऑल इंटीग्रेशन डेल एक्स इज इक्वल टू के डेल टी, एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो टी इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो 0 बराबर के टी प्लस सी इंटू 0, तो c इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को सब पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू के टी, तो k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। ये इसका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड। अब एप्लीकेशन ऑफ द जीरो ऑर्डर, तो फर्स्ट है यूनिट ऑफ k, यूनिट ऑफ k, तो k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। x क्या है, कंसंट्रेशन, t क्या है, टाइम। तो कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, तो कंसंट्रेशन मेजर्ड इन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, तो मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर। सेकेंड half life, half life. What do you mean by half life? Half life means the time of the chemical reaction when concentration of initial concentration of reactant decrease in half. किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है जिस टाइमिंग के दौरान, उसी को हम हाफ लाइफ कहते हैं। अब यहाँ क्या क्वेश्चन आता है कि the half life of zero order reaction is not depend on initial concentration of reactant. Prove that, explain that the half life of zero order reaction is depend on initial concentration of reactant, or a half life of a zero order reaction is directly proportional to initial concentration of reactant. तो उसमें टू मेथड है, k is equal to x upon t, तो t is equal to x upon k ये होता है। तो t इज इक्वल टू हाफ, तो x इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा होता है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, a का आधा हो गया a/2। इस वैल्यू को उसमें पुट कर दें, t हाफ इज इक्वल टू a अपॉन 2a, ये होता है। तो t हाफ प्रोपोर्शनल टू a, ये कांस्टेंट है, a फिगर है, तो टी हाफ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे, टी हाफ ए, स्ट्रेट लाइन जो उसके ओरिजिन पॉइंट से प्राप्त होती है। इससे हम जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेशन इक्वेशन का डेरिवेट दो प्रकार से करते हैं, दोनों मेथड से करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, जिसमें यूनिट आती है, यूनिट के बाद उसकी हाफ लाइफ आती है। तो हाफ लाइफ को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फर्स्ट टाइप था। सेकंड टाइप T इज इक्वल टू R नोट माइनस R अपॉन Q, तो T इज इक्वल टू
हाफ सेकेंड है तो आर इज इक्वल टू आर नोट बाई टू होगा, आर नोट बाई टू होगा। तो टी हाफ आर नोट टू अपॉन के नोट के, तो टी हाफ इज इक्वल टू टू आर नोट माइनस आर नोट अपॉन टू के, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट अपॉन टू के, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू आर नोट। इससे से हम हाफ लाइफ जो जीरो ऑर्डर की वो किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड। फिर नेक्स्ट होता है इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ग्राफ, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन टाइम कंसंट्रेशन स्ट्रेट लाइन, ये कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट वेलोसिटी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, तो वो उसमें कंसंट्रेशन का ग्राफ चेंज नहीं होता। तो कर्व लाइन ऑफ द अकॉर्डिंग टू द टाइम एक्सेस, जो कर्व लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, वो कर्व टाइम एक्सेस के इक्वल आएगी। सेकेंड हमने पढ़ा है KT, इट इज y इक्वल टू mx, ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो r इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R, ये लिख सकते हैं। ये इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की इक्वल होता है, तब हम उस ग्राफ को इससे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है, T इज इक्वल टू x, ये स्ट्रेट लाइन, ये इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, स्लोप tan थीटा बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं टाइम r, इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं r नोट, इससे स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के। इससे से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इससे से रिप्रेजेंट करते हैं, यही इसकी प्रोसेस प्रक्रिया होती है। अब उसके बाद जैसे रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन में जीरो ऑर्डर में हम क्या स्टडी करना है, फर्स्ट डेरिवेट द रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, उसके टू मेथड थे, दोनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हैं। सेकेंड, यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, टाइम को चेंज कर सकते हैं, मिनट, आवर्स। थर्ड, हाफ लाइफ, तो इसमें क्वेश्चन होता है कि जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर इज नॉट डिपेंड ऑन द डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है। उसको भी हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। थर्ड, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ क्लास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो जीरो ऑर्डर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से दे सकते हैं। तो रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में हम रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन कैसे शो कर सकते हैं, इस तरह से हम शो करते हैं, ये इसका प्रोसेस होता है। तो जब भी हमें केमिकल काइनेटिक में जो स्टडी करना होता है तो उसमें हम इंटीग्रेशन इक्वेशन, फोर टाइप की इक्वेशन होती है। फर्स्ट, रेट इक्वेशन, जिसमें हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, माइनस में शो करते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को पॉजिटिव में शो करते हैं। सेकंड होता है रेट कांस्टेंट इक्वेशन, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वेशन कहते हैं, जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग होती है। थर्ड होती है डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन, जिसमें हम डिफरेंशिएट के रूप में शो करते हैं। एंड फोर्थ होता है रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन, जिसका हम डेरिवेट करना होता है। तो हमने फर्स्ट डेरिवेट किया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन।